concentration of airflow is created by streamlined structures built in the shape of a flower and forming a building, giving the entire structure of the installation a monolithic architectural form. Cost of wind energy complex will amount to no more than 4-6% of the building cost. Here is a comparison of the better wind farm with wind farms of the classic type. Harmony with existing buildings and the environment. The possibility of placement directly in an urban environment. There is no energy loss. Remoteness from inhabited places. Infrastructure costs. Losses of 7% of energy when transmitting over distances. Safety. No noise. Low-speed design ensures noiselessness. There is no infrasound. The presence of intense noise up to 70 dB and infrasound, which has an adverse impact on the nervous system of living creatures. Power generation is possible at wind speeds of 4 meters per second. The possible height of the building is more than 190 meters. The ability to use gravity energy storage. The possibility of airflow concentration. The larger the area of the plates, the more energy. The airflow direction is carried out along a tangential line to the rotation circle of the plates. Workability doesn't depend on wind direction. Speed of rotation is 4-7 revolutions per minute. Vibrations are excluded. Here is application possibilities. Energetics is ready to make a step into the future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom gave the start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations to this. There is an open idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way.
When wherever the wind blows from the wind stream, we get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work with energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Your business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Vetya project. All right. Fantastic. Have a nice day. Right. विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? Okay, perfect. Yeah. Thank you very much, sir. Okay. All right. मैं आज आपका होस्ट मोहित चौधरी, राइट। आज की मीटिंग को हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। आज का शेड्यूल मैं बता देना चाहता हूँ आपको, राइट। आज हम लोग पूरा का पूरा बैक ऑफिस रिव्यू देखेंगे, राइट, और एक लेटेस्ट अपडेट, राइट, जो कि हमारे सर जो भी हमारे सर में अभी साथ में प्रेजेंट करेंगे, दैट इज मिस्टर आनंद परदेसी जी हैं, राइट। वो बैक ऑफिस को पूरा का पूरा एक बार रिव्यू कराएंगे, राइट, कि हम लोग जब अपना बैक ऑफिस में जाते हैं क्या क्या चीजें सीखने लायक हैं और क्या हमें जानना जरूरी है सिस्टम के अंदर, बैक ऑफिस के अंदर। ऑलराइट, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे आनंद परदेसी जी के थ्रू, राइट। और आज ही आनंद परदेसी जी ने डैनिश टैगलिन सर से, राइट, कुछ पर्सनल चैट किया था, राइट। वो भी एक अपडेट है अकॉर्डिंग रिलेटेड टू द सिस्टम, रिलेटेड टू द वीटर पावर प्रोजेक्ट। क्या नया अपडेट है वो भी हम लोग उन्हीं के माध्यम से जानेंगे, राइट।
तो जिस तरीके से हमारा शेड्यूल है, राइट, आप अगर सीखना और सिखाने में अगर बिलीफ रखते हो, तो आप अपने मेंबर्स को, राइट, अपनी टीम को आप इनवाइट कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यही वो मंत्र है जिसके थ्रू हम लोग सीख कर और सिखाकर नीचे हम लोग डुप्लीकेशन को फास्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को यहाँ पर बड़ा बिजनेस यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो मैं सबका वेलकम करना चाहूंगा, राइट। और मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो कोर टीम मेंबर्स हैं, राइट, दैट मिस्टर विपुल जी, मोहित चौधरी जी एंड मिस्टर जसवीर जी, राइट, एंड सभी को फाउंडर्स, राइट, उन सभी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। और जो भी हमारे साथ में आज फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ओके, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट, सो दैट मैं आपका भी इंडिविजुअली आपको वेलकम कर सकूं। जी गुना शेखर जी वेलकम, बलवंत पाटिल जी मोस्ट वेलकम, सोएबम धनाश्याम जी मोस्ट वेलकम, कौर मनदीप ज्योत मोस्ट वेलकम, गुलाब राव पाटिल जी मोस्ट वेलकम, राइट, सुजैन कुमार सेस जी मोस्ट वेलकम, मोहम्मद जाकिर जी मोस्ट वेलकम। ओके, और भी अगर कोई आपके नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आप आज की मीटिंग अटेंड करवाना चाहते थे, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, ओके, कॉल करके। योगेश खत्री जी मोस्ट वेलकम। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच, राइट। और थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ओके, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा अबाउट द सिस्टम, राइट, सो दैट आपको जो बैक ऑफिस वाला जो पार्ट है वो समझने में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। ओके, सभी लोग अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करूंगा हैंड रेज करने के लिए। ऑलराइट, सो फैंटास्टिक। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट द वीटर। वीटर एक्चुअल में है क्या, राइट। तो वीटर जो है आज के प्रेजेंट समय में, राइट, प्रेजेंट टाइम में एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, एक भविष्य की टेक्नोलॉजी, राइट, जिससे जिससे कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, धरती, इंसान, जीव जंतु, सब लोगों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, थ्रू दी कंट्रोल ऑन दी पॉल्यूशन। ओके, चाहे जिस भी तरीके का एक जो कॉमन पॉल्यूशन हम लोग देखने को जो मिलता है, सुनने को जो मिलता है, ओके, राइट। तो वो जो कॉमन सी चीजें जो देखने को मिलते हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन, राइट। और उसको हम लोग वीटर पावर टेक्नोलॉजी के थ्रू, वीटर पावर प्रोजेक्ट, राइट, या वीटर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रविनाश जी मोस्ट वेलकम। ओके, तो थैंक यू। और धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ओके, आनंद परदेसी जी, अगर अभी आपकी तरफ नेटवर्क सिचुएशन अगर क्लियर है, अगर ठीक है, तो आप अपना हैंड रेज करके एक बार आ सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके, फैंटास्टिक, या थैंक यू आनंद प्रदेश जी मोस्ट वेलकम, राइट। और मैं आपके माइक को, स्वयं दसम जी, अगर कुछ भी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग मीटिंग के एंड में उनका आंसर देंगे, राइट। लेकिन बीच बीच में हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, आनंद परदेसी जी मोस्ट वेलकम सर आपका, राइट। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज, राइट, सो दैट आपको मैं अभी होस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ और आगे का सेशन आप लीजिएगा। ओके, बट बिफोर गोइंग टू टेकिंग द बैक ऑफिस रिव्यू, मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा। ओके, थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा अबाउट द वीटर पावर प्रोजेक्ट, राइट। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग अगर देखें इसका, ओके, कोई पूछता है कि सर एक्चुअल में है क्या वीटर पावर प्रोजेक्ट, वीटर का फुल फॉर्म क्या है, तो वहां से मैं एक बार स्टार्ट करना चाहूंगा। वीटर बेसिकली वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। ओके, एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम लोग बार बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें और साथ में पॉल्यूटेड एयर को भी हम लोग उस पॉल्यूटेड एयर को भी हम लोग फिल्टर करके एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कर सकें, एक तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को रीस्टोर कर सकें। ये वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा सूट होता है। ओके, अब हम लोग जो बैक ऑफिस देखने जाएंगे, बैक ऑफिस रिलेटेड जो है सारा का सारा, वो आप जो इंडिविजुअल और जो आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, राइट, वहां पर पूरा का पूरा
पूरा का पूरा डेटाबेस है। बैक ऑफिस मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस, राइट। और उस डेटाबेस के माध्यम से आप अपनी डेली बेसिस की अपनी टीम की ग्रोथ को आप देख सकते हैं। ओके, सो आनंद परदेसी जी मोस्ट वेलकम, हमारे बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर हैं, वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू राइट, वेरी मच थैंक यू मोहित जी। वेरी मच सर। एंड सो नाउ यू बिकम द होस्ट सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अभी? यस सर, डेफिनेटली। ओके, हाँ मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, आवाज वेरी क्लियर आ गुड रही सर। है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। लेकिन सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज स्क्रीन के ऊपर ही मोर में जाके हाँ डिसेबल हाँ, एनोटेशन फॉर, हाँ राइट। यस 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 यस, सो नाउ इसको इट मैं इज करता ओके। हूँ। ओके सर, हो गया सर। हो गया ना? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। प्लीज मोर पे क्लिक कीजिएगा, राइट। डिसेबल एनोटेशन फॉर द अदर, जो भी उस पे लिखा हो एनेबल डिसेबल, हो उस पे गया, एक बार कर देंगे तो हो जाएगा। या हो गया हो गया। सर, वेरी गुड। यस, चलो, कीप इट अप सर, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। चलो, थैंक यू। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे आप सबसे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज विटर पावर प्रोजेक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आज मेरा 60 सक्सेसफुल डेज कंप्लीट हो चुका है। यानी 19 मई 2021 में ऑलरेडी मैं विटर पावर प्रोजेक्ट ज्वाइन हुआ था और आज 19 जुलाई है, तो आज 60 डेज कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, जैसा पता है ना, कोई भी चीज अगर करना हो, अगर एक आपको हैबिट लगाना हो तो आपको कंटिन्यू वो चीज को 21 दिन आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज में अगर आपको सक्सेस पाना हो तो 100 डेज उसमें कंप्लीट आपको देना ही पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट देना पड़ता है। जो भी वर्क हार्ड करता है, स्टे फोकस स्टे करता है, डेडिकेशनली 100 डेज काम करता है, उसका सक्सेस यहाँ पे बनता ही बनता है। वो कोई भी फील्ड पे सक्सेस ले सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, या चाहे कोई भी हो प्रोजेक्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग आज देखें, मेरे पास जो पार्ट आज है, जो लर्निंग पार्ट है, और मैं हमेशा लर्निंग में बिलीव करता हूँ कि अगर लर्निंग करते हो तो बाद में आपको सिर्फ आगे करना क्या है, वो लर्निंग क्या, पहले जो एल है उसको निकालना है बस। लर्निंग के बाद अर्निंग आता है। अभी हम लोग लर्निंग देखेंगे। लर्निंग जो मेरा पार्ट है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। ये हर चीज में, हर क्षेत्र में ये जरूरी चीज है। हमको सीखना बहुत जरूरी है। जितना आप सीखोगे आप उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। सीखते रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अभी तक 20 साल का एक्सपीरियंस तो मैं मुझे परफेक्ट हुआ, नहीं, मैं अभी तक परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं बड़े लोगों से सीखता हूँ, छोटे लोगों से भी सीखता हूँ, मेरी कम उम्र से सीखता हूँ, बड़े लोगों से सीखता हूँ। हर आदमी जो मुझसे मिलता है उससे मैं कुछ न कुछ सीखते रहता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अब यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे डायरेक्ट। मेरा जो प्रेजेंटेशन है, आपको विटर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जो बैक ऑफिस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एजुकेशन लेंगे। आप लोग सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, आशा करता हूँ आप अपने बैक ऑफिस को रोज ओपन भी करते होगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो आपको हर रोज देखनी पड़ती है। जितना आप देखोगे उतना आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। पहले ये जो अपना है बैक ऑफिस है, ये हमारा वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मेन है, लॉगिंग है, रजिस्टर्ड है। मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा। जो बंदा यहाँ पे जिसको लिंक मिलती है, अगर आप किसी को इनवाइट लिंक भेजते हो, रेफरल लिंक भेजते हो, तो वहां से हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा बैक ऑफिस को ऐसा ऑपरेट कर पाते हैं, तो सारा चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत बहुत बढ़िया एक अच्छा चीज देखने को मिलेगा, जिससे आपकी नींद, मेरे ख्याल से रात को नींद नहीं आएगी आपको आज। आखिरी में वो हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है आज का मीटिंग का। तो हम क्लाइमैक्स अगर जो रुकेगा क्लाइमैक्स, तो वो रात को सो नहीं पाएगा, ये पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेन है, लॉगिन है, रजिस्टर। मेन में अगर आप जाओगे तो मेन में आपको सब चीज देखने मिलता है। यहाँ पे कंपनी का जो है, ये देखो, ये ऑथर के बारे में है, ये विटर के बारे में है, और ये रहता है अपना कोरोड के बारे में। अभी यहाँ पे देखो, अगर डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आया है, आपका लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट करते हो। बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे अगर चूज अनदर लैंग्वेज आप जाते हो, ये ऑप्शन आपको कहाँ पे आता है, जब आप मेन पेज को ओपन करते हो, चूज अनदर लैंग्वेज में आप जाते हो, तो यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश है, इसको अगर मैं हिंदी कर दूं, यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करने के लिए आपका ऑप्शन है। बहुत सारे दुनिया भर के लैंग्वेज यहाँ पे है। अगर मैं इसको हिंदी करता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो चुका है। ये देखो, नए सुविचार, नई दुनिया, सारा चीज आपको हिंदी में मिलेगा। कंपनी के जो ओनर है, लेखक है, जो ऑथर है, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। विटर प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और ये गोरोड के पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो हमको जाना है अभी विटर के बारे में। विटर पे हम लोग जाएंगे।
क्योंकि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं वो विटर है। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे वापस ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप हिंदी में भी कर सकते हो, जैसे हिंदी में कर दिया तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन देखो कैसा होता है। थोड़ा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हिंदी को अगर सिलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट अभी बहुत से लोगों के पास रशियन और इंग्लिश आता है, आपको हिंदी और इंग्लिश भी आ चुका है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया। आप मराठी चाहिए, कन्नड़ी चाहिए, जो लैंग्वेज चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारा चीज कंपनी ने आपको दे चुका है। आपको क्या करना है, खोजना है, खेलना है, अपने वेबसाइट पे जाना है, टाइम आपको वहाँ पे स्पेंड करना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए टाइम बहुत जरूरी है। अभी जाते हैं, अभी नया जो लिंक आपको किसको मिलता है उसको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अगर रजिस्ट्रेशन क्लिक करता है तो उसको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे अभी किसी ने रेफरल लिंक भेजा है तो डायरेक्ट आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज ही ओपन होगा। अगर किसी ने रेफरल लिंक नहीं है, अगर किसी को डायरेक्ट वेबसाइट से लॉगिन करता है तो यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूसर का उसको लॉगिन नेम बहुत जरूरी डालना पड़ता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी के जो यूजर है, उसको यहाँ पे कंपनी का यूजर नेम बहुत जरूरी है। जैसा भी मेरा यहाँ पे यूजर नेम है, तो जिसने भी आपको लिंक भेजा है या आप किसको लिंक भेजते हो, यहाँ पे उसका लिंक होना जरूरी है, उसका यूजर नेम होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम यहाँ पे होना जरूरी है, आपका ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर। रजिस्टर जैसे क्लिक करते हो तुरंत आपका मेल पे एक कंफर्मेशन लिंक आता है, वो कंफर्मेशन लिंक के थ्रू आप उसको कंफर्म करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते ही आपको जो 500 जो गिफ्ट शेयर्स है वो आपके तुरंत पोर्टफोलियो में दिख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अभी हम जाते हैं लॉगिंग में। लॉगिंग में जाते हैं, लॉगिंग में आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांगते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालने का जो आपका एग्जिस्टिंग यूजर आईडी पासवर्ड जो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यहाँ पे हम लॉगिंग करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड वाला सब ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ये मैंने यहाँ पे 2FA कोड को ऑलरेडी ऑथेंटिकेट किया है, तो मुझे यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा। आपको सबको मैं वो लास्ट टाइम भी बताया, आप भी बता रहा हूँ कि जैसा मैं ऑनलाइन पे बहुत जानता हूँ, इसलिए मैं इसको हर चीज को यहाँ पे सिक्योर करता हूँ। जो भी मेरा ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे सिक्योर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं कोड डाल के जो मेरे मोबाइल पे आता है, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बैक ऑफिस ओपन हो चुका है। इस तरह से अपना बैक ऑफिस आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तो आपको सब यहाँ पे दिखेगा। अभी ये अपना ट्विटर का जो देखो लाइव चल रहा है, ट्विटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में जो अपना कस्टमर केयर है, सपोर्ट सिस्टम है, उसके यहाँ पे नंबर दिया है। ये नंबर आप कभी भी लगाएंगे नहीं, आप ये नंबर को जब भी आपको व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर। यहाँ पे टाइम क्या है, उसी टाइम पे आपको रिप्लाई मिलता है। 24 to 48 आवर्स लगता है आपको रिप्लाई मिलने के लिए। और ये ऑपरेट रहता है मॉर्निंग 10 बजे से लेके रात को 21 मतलब 9 बजे तक। यानी आपने यहाँ वहाँ का मॉस्को टाइमिंग है, हम लोग यहाँ से उनसे 2.5 घंटा आगे है। यानी हमारे यहाँ पे 11:30 रात को 11:30 बज जाते हैं, जब उनके 9 बज जाते हैं। उसके बाद जाते हैं, ये देखो ये आपके पास, आपको ऑफलाइन कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सारा चीज आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद जैसा ही नया बंदा यहाँ पे लॉगिन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, लॉगिन पेज को ओपन करता है, तो उसको जाना है यहाँ पे सेटिंग में। ये सेटिंग में क्लिक करता है तो यहाँ पे उसको आएगा ऑथेंटिकेशन। उसका नाम, उसका यूजर नेम रहेगा, यहाँ पे ईमेल जो है उसके नीचे कंफर्म ईमेल करके ऑप्शन आता है, क्योंकि वो आप ही हो, आपने ही लॉगिन किया है, आपने ही ओपन किया है, इसलिए आपको एक लिंक आएगा कंफर्म करने के लिए। अभी मैंने ऑलरेडी कंफर्मेशन कर लिया है, इसलिए यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। तो नया जो भी है वो पहले यहाँ पे जाके कंफर्म ईमेल करेगा, तो उसके मेल पे एक लिंक आएगा। जैसा वो मेल को क्लिक करेगा, लिंक को क्लिक करेगा, उसका यहाँ पे ईमेल कंफर्मेशन हो जाएगा और कंपनी ये कंफर्म कर लेगी कि जो अकाउंट उन्हीं का है। उसका ये फोन नंबर है, यहाँ पे आपका पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जो भी आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, आपका जो यूजर नेम आपने दिया है यहाँ पे हैप्पी उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, उसको क्लिक करते हैं तो आपको क्या यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपका टोटल केवाईसी जो है वो यहाँ पे आपको भरना है। आपका जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे भरना है। छोटी छोटी चीजें हमको बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अकाउंट वेरीफाई होता है उसी का यहाँ पे वैल्यू होता है। अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो ना ही आपके नाम से कोई सर्टिफिकेट निकलेगा, ना ही आपका कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलेगा। अभी यहाँ पे सरनेम में आपको डालना है आपका सरनेम, आपका नेम, मिडल नेम। ठीक है, उसके बाद लैटिन में पूछा गया आपको सरनेम और नेम, वो सेम आपको जो आपका इंग्लिश में डाला है वही आपको रिपीट यहाँ पे करना है। आपका जेंडर यहाँ पे डालना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको बर्थ डेट पूछा गया है, वो आपको बर्थ डेट डाल दीजिए। राइट साइड में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको केवाईसी के लिए आपको
तीन ऑप्शन दिया है कंपनी ने। एक तो पासपोर्ट, रशिया का इंटरनेशनल पासपोर्ट, या फिर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपका पासपोर्ट है और वो पासपोर्ट वैलिड है, ठीक है ना, उसका एक्सपायर डेट अभी तो हुआ नहीं है, तो वही पासपोर्ट नंबर आपको लगेगा। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वो डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी कार्ड के पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सीरीज है, सीरीज में आप जो पासपोर्ट का नंबर है वो डाल दीजिए, आधार कार्ड का नंबर है वो डाल दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये वापस वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, लेकिन डालते आपको ये डालना जरूरी है, या फिर आपको ब्लैंक नहीं रख सकते उसको। नंबर जो है वो आपको नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपका जो भी पासपोर्ट का नंबर है यहाँ पे डालना पड़ेगा। सारा चीज कैपिटल में जितना रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इशू डेट होता है, इशू डेट पासपोर्ट पे ऑलरेडी दिख जाता है। आधार कार्ड बहुत से लोगों ने क्या किया, आधार कार्ड को कट कर लिया, इसलिए इशू डेट वहां से निकल जाता है। अगर किसी का फुल आधार कार्ड है वर्टिकल वाला, तो उसके ऊपर इशू डेट होता है, वो आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो अंदाजे 2011 के बाद जितने भी आपको अंदाज आता है वो डेट आप डाल सकते हो, क्योंकि 2010 के पहले आधार कार्ड नहीं था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू डिवीजन है, जिसने आपको वो डॉक्यूमेंट इशू किया है उसका यहाँ पे नाम डालना है। तो बेस्ट वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल दो, सारा चीज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लाइव एड्रेस है वो डाल दीजिए, जो आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड के ऊपर या आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे होता है, वो आपको यहाँ डालना है। कंट्री यहाँ पे डालना है। यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आपने आधार कार्ड डिटेल डाला है तो आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी, अगर आपने पासपोर्ट डाला है तो पासपोर्ट का फ्रंट कॉपी आपको यहाँ पे लोड करना है। लोड करने के बाद दो ऑप्शन आएगा आपको, सेव और वेरिफिकेशन, कंटिन्यू वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे सेव पहले करना है, उसके बाद कंप्लीट द वेरिफिकेशन को क्लिक करना है। कंप्लीट द वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर टॉप में है वेरिफिकेशन, अभी यहाँ पे मेरा वेरीफाइड दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। आपके यहाँ पे आएगा वेटिंग फॉर रिव्यू, यानी जो कंपनी का जो ऑथराइज डिपार्टमेंट है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो सारा यहाँ पे आपका वेरीफाई करने का 24 to 48 आवर्स में ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ चीज उसमें नहीं दिख रही है या वेरिफिकेशन नहीं होता है तो यहाँ पे आपको रेड अलर्ट में आएगा कि आपको ये चीज करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपना कंप्लीट हो चुका है। केवाईसी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने 500 शेयर्स भी लिए तो केवाईसी उसको करना बहुत जरूरी है। कम से कम वो केवाईसी करता है तो उसके 500 शेयर उसके नाम से उसके हो जाते हैं। अभी जाते हैं हम लोग यहाँ पे मेनू का, हमारा ये जो मेनू है, ठीक है ना, ये सारा नोटिफिकेशन से हमारे लैंडिंग पेज में जाएंगे तो हम डायरेक्ट वापस हमारे मेन वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वापस दिया गया है। वेबसाइट को आप पूरा देखना जरूरी है, सारा चीज आपको वहां पे दिया है, ठीक है ना। बाय शेयर्स में हम जाते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, यहाँ पे बाय शेयर्स। हमको यहाँ पे शेयर्स बाय करने हैं, तो बाय शेयर में जाते हैं हम लोग, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंस्ट्रूमेंट और बाय शेयर्स। अभी मैंने यहाँ पे मेरा एक मेथड यूज किया, ये मेरा पर्सनल मेथड है, ठीक है ना, ये सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और थोड़ा इसको ये प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट को लोगों को थोड़ा समझने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ फंडा यूज किया था कि मेरे जितने भी डायरेक्ट्स है, ठीक है ना, अभी भी मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं इनको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप 500 शेयर ले रहे हो तो फर्स्ट आपको कंपनी का जो फर्स्ट आपको जो पैकेज लेना है तो मिनिमम आपको $100 लेना है, क्योंकि आप बाय शेयर पे क्लिक करते हो तो आपको बाय शेयर ही करना है, ना कि आपको इंस्ट्रूमेंट जाना है। लेकिन आप बाय शेयर को क्लिक करते हो, बाय शेयर जाके बाय शेयर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है मिनिमम आपका जो पैकेज होना चाहिए वो $100 का होना चाहिए। $100 आप जिससे लेते हो, ठीक है ना, आपके लिए इंस्टॉलमेंट पैकेज एक्टिवेट हो जाता है। ये मेरा फंडा है, जरूरी नहीं कि आप सब इसको यूज करो, लेकिन अगर इसको यूज करोगे तो आपको एक अच्छा मतलब क्लास टीम मिलेगा, आपको अच्छा क्लास एजुकेटेड आदमी मिलेगा जो सीरियसली आपके मतलब अपने खुद के लिए वो सीरियसली है। अगर वो जैसा वो 100 शेयर को बाय करता है तो उसको मैं बोलता हूँ कि आपके लिए इंस्टॉलमेंट जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, तो आप जो भी है इंस्टॉलमेंट से यहाँ पे आप अगर आपको शेयर परचेस करना है तो आप यहाँ पे वन टाइम नहीं देखिए, आप इंस्ट्रूमेंट से परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट से परचेस करके आपके शेयर पोर्टफोलियो बढ़ा सकता है। अभी इसमें भी दो ऑप्शन है, मैं उनको बोलता हूँ। दो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है हर महीने आपके जेब से, जैसे अभी आपने $100 अपने जेब से डाला है और आपने शेयर परचेस किया और आपका आईडी को एक्टिवेट किया और इंस्ट्रूमेंट आपको एक्टिवेशन हो चुका है। अभी इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन एक्टिव होने के बाद जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट भरना है या तो आपकी जेब से भरो, या फिर इसमें एक पार्टनर प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को रेफरल करते हो, तो रेफरल से जो भी बोनस आपको मिलता है वो बोनस से भी आप आपके बैलेंस से भी आपके आप इंस्टॉलमेंट हर महीने पे कर सकते हो।
हर महीने पे कर सकते हो, वन टाइम पे कर सकते हो, जैसे ही आपको करना है। तो ये ऑप्शन मैं इनको देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक पहले दिखूंगा मैं आपको $100 का पैकेज कैसे सिलेक्ट करना है, एक डेमो दिखूंगा आपको। अब जैसा $100 पे मैंने क्लिक किया, $100 का पैकेज आपको सिलेक्ट करना है। हर एक मेरे डायरेक्शन में बोलता हूँ, और मैं मेरे टीम को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि $100 में जो बंदा आता है आज के डेट में, 8,000 की रिस्क कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 10-15 हजार का मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है ना, हर साल 2 साल में चेंज करते हैं। तो ऑलरेडी देखेगा तो 5 साल में वो कम से कम 40-50 हजार रुपये मोबाइल पे खर्च करता है। तो $100 का अगर हम लोग रिस्क वन टाइम ले रहे हैं, तो आगे चल के वो $100 में आपके कितने पैसे बनने वाले हैं, आप उसको कैलकुलेशन दिखा सकते हो। तो $100 का यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 में हमको जाना है सिलेक्ट पेमेंट टाइप। अभी यहाँ पे पेमेंट, अगर आपके पास वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड है, तो आप इसको यहाँ पे ये पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्ट मनी का ऑप्शन है तो सिलेक्ट कर लीजिए इससे, ठीक है। आगे चल के अगर आपके पास बैलेंस आएगा, जो भी आप रेफरल प्रोग्राम में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी बोनस आपका आएगा, तो बैलेंस में जो भी आपका बोनस पड़ा है, वो बोनस से आप यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट भर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसका एक ऑप्शन कार्ड का, जो कार्ड है उसके बाद। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितने भी लोग अभी नए आए हैं और आ रहे हैं, तो सबको मैं बोलूंगा कि आपके पास वीजा कार्ड नहीं है तो प्लीज बैंक में जाके वीजा कार्ड को परचेस कर लीजिए। बैंक को बोलिए मुझे वीजा कार्ड चाहिए, और उसको इंटरनेशनल एक्टिवेट करवा लीजिए। फॉरेन रेमिटेंस सर्विस एक्टिवेट होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर फॉरेन रेमिटेंस सर्विस एक्टिवेट हो जाता है तो आप कोई भी कंट्री का पेमेंट, कोई भी कंट्री को पेमेंट कर सकते हो। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैं मेरे सीनियर को पैसा देता हूँ, लेकिन अभी आपको बताऊंगा, अगर हम लोग अगर अपना कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जैसा भी इंडिया से पैसा कट होकर आईएनआर में कट होकर कंपनी को रूबेल में जाता है, ठीक है। तो कल डिविडेंड भी जो रूबेल से इंडिया आईएनआर में आएगा ना, तो जो आपके पास इंटरनेशनल कार्ड होगा तो ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आपके पास इंटरनेशनल कार्ड ही नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसा कहाँ है। उस टाइम पे वो न्यू आदमी बोलेगा नहीं कि मेरे सीनियर के अकाउंट में डाल दो डिविडेंड। हर बंदा बोलेगा मेरे अकाउंट में डिविडेंड चाहिए। अगर आपको आपके अकाउंट में चाहिए, हर चीज चाहिए, तो आपके अकाउंट को, आपके कार्ड को आपको एक्टिवेट करना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका वीजा या मास्टर कार्ड होना बहुत जरूरी है, और है तो उसको एक्टिवेट करवा के लीजिए। उसका प्रोसेस भी मैं लास्ट मीटिंग में बताया था, ठीक है ना। 10 मिनट का प्रोसेस, 10 मिनट में आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, आपके बैंक नहीं जाते हुए भी ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे पहले वीजा कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं प्रोसीड में जाता हूँ। प्रोसीड को क्लिक करता हूँ तो कंपनी ने जो गेटवे लिया है पे मास्टर का, ठीक है ना, वो गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम लोग जाएंगे वो गेटवे के थ्रू अपना पेमेंट पूरा करने के लिए। अभी यहाँ देखो पे मास्टर ये क्या है, जैसा पेपाल होता है, ठीक है ना, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर होता है, परफेक्ट मनी होता है, बहुत सारा चीज गेटवे है इंटरनेशनल। तो यहाँ पे कंपनी को ये अच्छा गेटवे पे मास्टर अच्छा लगा, इसलिए कंपनी ने इसको दिया है। अभी यहाँ पे देखा कि 7,500 रूबल है। 7,500 रूबल ये हमारा इज इक्वल टू $100। हमारे करेंसी में देखिएगा तो करीबन 8,000, 8,003 या कभी कभी 7,900, 7,000 जो भी अमाउंट आता है, जो भी डॉलर का रेट है, वो आ जाता है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे करना है वीजा मास्टर कार्ड जो है, बैंक कार्ड, उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट जैसे ही करते हैं आप, बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या होता है कि रशियन लैंग्वेज दिखता है। तो यहाँ पे देखो ये फ्लैग है, ये रशियन का फ्लैग है, ये इंग्लैंड का फ्लैग है। अगर आपको रशियन लैंग्वेज चाहिए तो ये फ्लैग को सिलेक्ट करो, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो ये फ्लैग को सिलेक्ट करो। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होता है। यहाँ पे इंडियन फ्लैग में इसलिए हिंदी लैंग्वेज चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। तो बैंक कार्ड को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि कार्ड पेमेंट जब कर रहे हैं आप, तो आपको कार्ड जो है आपका है, उसका पूरा 16 डिजिट जो भी है, आपको यहाँ पे उसका नंबर डालना है। उसके बाद आपको जो कार्ड के ऊपर वैलिड थ्रू है, यानी कब तक वैलिड है, उसका मंथ, उसका ईयर यहाँ पे डालना है। उसके बाद कस्टमर वेरिफिकेशन जो नंबर होता है, कोड होता है, सीवीसी बोलते हैं उसको, वो आपके कार्ड के बैक साइड में स्ट्रिप के बाजू में होता है 3 डिजिट का, उसको वहां पे डालना है। और पेमेंट को कंफर्म करना है। पेमेंट को कंफर्म करने के बाद आपको ओटीपी पूछा जाएगा। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड बैंक है, जो आपकी बैंक है, वहां से आपको आएगा, ना कि कंपनी की तरफ से आएगा। बैंक आपको पूछता है कि आपको पेमेंट करना है, कि इसलिए बैंक आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ओटीपी मांगता है। आप ओटीपी डालते हो, जैसा ओटीपी डालते हो यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपका एक्टिवेट बैंक कार्ड एक्टिवेट नहीं है तो पेमेंट सक्सेसफुल होगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस था हमारा शेयर बाय कार्ड कैसे बाय करना है। तो यहाँ पे मैं कैंसिल पेमेंट करता हूँ।
उसके बाद हम जाएंगे वापस बैक ऑफिस पर, बाय शेयर हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो अपना इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने परचेस कर लिया, उसके बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे दिखेगा, माई इन्वेस्टमेंट में आप मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने जो अभी पहला आज जो परचेस करवाया था उसको यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी पूछता है प्रोसीड टू चेकआउट। अगर कंप्लीट करना है तो प्रोसीड टू चेकआउट को क्लिक करना है, अगर कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ देखो मैंने जैसे बताया आपको, आज मुझे 16 डेज हो चुका है, तो 19 मई 2021 को मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। आज बराबर 2 महीना हो चुका है, 60 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी है, अगर व्यू मोर को क्लिक करते हो तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, व्यू मोर को यहाँ पे क्लिक करते हो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इसका भी एक आपको डेमो देता हूँ, लाइव डेमो। जैसा भी यहाँ पे मैंने जो मेरा 56748 है, आज आपको मिल रहा है 55635 $100 में। मैंने लिया था सेकंड स्टेज में लिया था। जैसे ही मैंने सेकंड स्टेज में लिया था, मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे के बाद वो स्टेज चेंज हुआ था। तो मैं लकी हूँ कि मुझे कम से कम 1000 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, यानी $1000, कल के $1000 भी है, कल के $10,000 भी हो सकते हैं। तो व्यू मोर में क्लिक करते हैं। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है तो आपको ये ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की डाउनलोड एडीके, यानी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, और सेंड सर्टिफिकेट टू ईमेल। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये देखो बहुत से लोग बोलते हैं मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट आप रोज के रोज निकाल सकते हो, कोई यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट को क्लिक करते हो, यहाँ पे ये जो मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट जा चुका है। अगर मैं मेरे मेल आईडी को यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तब तक हम आगे कंप्लीट कर ले इसको। ये सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी ईमेल पे आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। उसके बाद जो भी हम लोग वर्किंग करते हैं, अभी ये आपका प्रोफाइल है, ये पूरा आपका बैक ऑफिस है। यहाँ पे क्या आपको देखने मिलता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलता है, ठीक है। ये 57248 जो है ये पोर्टफोलियो, आपका इतना शेयर आपने परचेस किया है। उसके बाद जो आपका अर्निंग है वो राइट साइड में देख लीजिए, आपका ये अर्निंग है, ये अर्निंग जो है टोटल अर्निंग है आपकी टिल डेट, उसमें से कितना विड्रॉ किया वो भी आपको दिख जाता है, और कितना बैलेंस है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अभी जो बैलेंस है इसमें 12,001 रूबल है। रूबल मतलब ये नियर अबाउट इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन करेंगे तो 12,200 रुपए कुछ होता है, ठीक है ना। और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 76 या 77 इसको कर लीजिए, वो आपको उतना डॉलर दिख जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कौन से आईडी से पेमेंट आपको आया है, सारा चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको दिख जाता है। मैं एक बार ईमेल चेक करता हूँ, ठीक है। ईमेल ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, शायद इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी पेआउट्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पेआउट्स जो है, ऐसा आपको यहाँ पे पेआउट्स आ जाता है। पेआउट्स में भी आपको 2 ऑप्शन है, बैलेंस और पेआउट। अगर आपके पास जो भी बैलेंस है वो आपको कहाँ कहाँ से आया है, बैलेंस को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा इसका टोटल शीट निकल जाता है। ये पूरा टोटल आपका शीट है, ठीक है। और कौन से यूजर आईडी से आपको आया है सारा चीज यहाँ पे दिख जाता है, डेट वाइज, ट्रांजेक्शन आईडी वाइज, टाइम वाइज, सारा चीज इसमें दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद पे आउट में जाएंगे हम लोग। अगर जो भी हमारा पे आउट है, मिनिमम अगर आपके बैलेंस में, ये जो बैलेंस है आपका यहाँ पे अगर 800 रुबल है तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। 800 रुबल मतलब अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो नियर अबाउट 800 रुपया अपने इंडियन रुपीज में 805 रुपया होता है। 805 रुपए का मिनिमम विड्रॉल है, यानी डॉलर में पकड़ा जाएगा तो करीबन 11 से 12 डॉलर हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना मिनिमम विड्रॉल कंपनी दे रही है, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत से कंपनी क्या करती है, 50 या 100 डॉलर के ऊपर विड्रॉ देती है, या उसके नीचे तो कोई विड्रॉ देता नहीं है, ठीक है ना। तो नए नए जो भी जितने लोग आते हैं, बहुत से लोग क्या वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके अपना काम स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, जो आपने मेहनत किया है आप तुरंत उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो पे आउट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे पे आउट में आपको पे आउट विड्रॉ कैसे करना है वो भी आपको मैं एक शॉट दिखाऊंगा। यहाँ पे यांडेक्स मनी जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसका, यांडेक्स मनी का, तो हमारे पास जो है तेथर मनी का ऑप्शन है,
ठीक है, तेथर जो है, तेथर को क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको करना है तेथर को क्लिक। यहाँ पे TRC20 एक यूएसडीटी, एक ट्रोन ब्लॉकचेन वाला यूएसडीटी होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक इथेरियम ब्लॉकचेन वाला, एक ट्रोन ब्लॉकचेन। हमको ट्रोन ब्लॉकचेन का चाहिए जो हर एक्सचेंज पे आपको मिलता है। ठीक है, हर एक्सचेंज पे उसका ऑलरेडी पेयर बना चुका है, बना हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे देखेंगे हम लोग, TRC20 कंपनी इसका फी कोई लेता नहीं, जितना आप विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके यूएसडीटी आपको मिलता है। यहाँ पे कोई कंपनी का फी नहीं है। TRC20 जैसा यहाँ लगा, यहाँ देखो जैसा बताया मैं, 12,000 161 यूएसडीटी यहाँ पे उसका बन जाता है। 1 USDT इज इक्वल टू 1 USD डॉलर, 1 US डॉलर। ठीक है, तो ये इतना विड्रॉ आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो भी आपका तेथर एड्रेस है वो आपके ला टोकन या कहाँ पे भी आपका यूएसडीटी TRC20 है वहां से कॉपी करके यहाँ पे डालना है। फोर्थ स्टेप मैंने जैसा बताया आपको, मैंने 2FA कंफर्मेशन कोड को एक्टिवेट करवाया। तो हर टाइम पे जब भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन कोड मेरे सिक्योरिटी अकाउंट के सिक्योरिटी के लिए आ जाता है, और यहाँ पे मैं विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ करने आपको एक ईमेल आता है कंफर्मेशन के लिए कि आपने वो विड्रॉ कंफर्म करने के लिए आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करके आपका विड्रॉ कंफर्म करना है। जैसा विड्रॉ कंफर्म को क्लिक करते हैं, लिंक को क्लिक करते हैं, आपका विड्रॉल क्यू में लग जाएगा। तो विद इन 24 to 36 आवर्स में, कभी कभी 12 घंटे में भी आता है, कभी 6 घंटे में भी आता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 24 आवर्स पकड़ लो। 24 आवर्स में आपके वो ला टोकन के यूएसडीटी एड्रेस में वो आपके जितने भी वहां यहाँ से 161 यूएसडीटी है वो सारा ट्रांसफर वहां पे हो जाता है, कुछ ₹1 कटता नहीं है। ठीक है, ये होगा अपना पेआउट कैसे विड्रॉ करना है, और उसका आगे कैसा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, उसका पूरा एक वीडियो 3-4 मिनट का वीडियो में अलग अलग 3 स्टेज में बना के ग्रुप का ऑलरेडी भेजा है। अगर आपके जो अपलाइन है उनसे आप मांग सकते हो। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम लोग पार्टनर इन्फॉर्मेशन पे। पार्टनर इन्फॉर्मेशन है जो आपका टोटल बैकबोन है कंपनी का, मुझे ये कंसेप्ट का बैकबोन है। इसमें देखेंगे मॉडल अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा चीज यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रेफरल प्रोग्राम क्या है, पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या है, अबाउट द प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे दिया है कंपनी ने। ठीक है, यहाँ सबसे खास बात क्या है, आपको आपका रेफरल लिंक यहाँ पे मिलता है। अगर किसी का ज्वाइनिंग हो चुका है लेकिन उसने कोई भी शेयर पैकेज परचेस नहीं किया है तो आपको कॉपी लिंक नहीं मिलता है। वैसे ही मैं मेरे नए लोगों को बोलता हूँ या पुराने लोगों को बोला कि मिनिमम $100 का पैकेज लेते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 2 बेनिफिट मिलता है। एक तो आपको इंस्ट्रूमेंट का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है, और आपके नाम की रेफरल लिंक भी एक्टिव हो जाती है। ये 2 बेनिफिट अगर आप प्रॉपर वे से बताओगे कि इंस्ट्रूमेंट लेने से क्या फायदा होने वाला है और रेफरल लिंक आने से क्या फायदा होने वाला है, तो बंदा $100 का पैकेज आराम से लेगा। उसको कोई, क्योंकि आप अगर वैल्यू क्रिएट करोगे तो सामने वाला उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है, हम क्या बता रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका होगा। यहाँ पे हम लोग पार्टनर में जाते हैं, माय पार्टनर्स में देखेंगे तो आपके सारे जितने भी आपके फ्रंट लाइन है वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। ये आपके सारे फ्रंट लाइन है, यहाँ पे आपको सारे फ्रंट लाइन दिख जाते हैं, और फ्रंट लाइन का टोटल टीम कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। फ्रंट लाइन ने कितने शेयर्स लिए वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। फ्रंट लाइन का जो भी ईमेल आईडी वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। फ्रंट लाइन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। मैं ये कंसेप्ट मैं पहली बार देखा, ये जो सिस्टम है ये पहली बार देखा है, क्योंकि ये MLM नहीं है। ठीक है ना, MLM में नीचे वाले का इनकम दिखता नहीं, ऊपर वाले का इनकम दिखता नहीं, सिर्फ अपना इनकम दिखता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही चीज दिखता है कि जो भी लोगों को मैं यहाँ पे लाया हो, शायद उसको मैं लाया हो तो उसमें पैसा भी कमाना जरूरी है। अगर पैसा कमा रहा है तो मुझे दिख जाता है वो पैसा कमा रहा है। ठीक है ना, तो पैसा अगर सामने मेरा टाउन में अगर कोई पैसा कमा रहा है, जिसको भी मैंने शेयरिंग किया, अगर पैसा का सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होती है कि वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिख जाता है। रेफरल ट्री आपको दिख जाता है। आपका बिजनेस कहाँ कहाँ वर्ल्ड में है, कहाँ कहाँ एरिया में है, वो मैप में आपको दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चाहेंगे अबाउट द प्रोग्राम वापस बैक में। यहाँ पे कंपनी ने टोटल मोर में जाओगे आप, यहाँ पे PDF फाइल ओपन हो जाएगा। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो। ये 60-40 कंपनी जो रेशियो है, अभी कंपनी जो बताया इसमें आपको 40% कंपनी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है और 60% कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी ये जो 40% है, 60% है, 40% तुरंत जैसा ही कंपनी के पास $100 जाता है उसका $40 इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंपनी अपना हक सिर्फ $60 पे रखती है। $60 जो है वो कंपनी अपना स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, फॉरेन पेटेंट्स, एक्विजिशन और सारा चीज जो भी है, एग्जीबिशन अभी दुबई में जितना भी जो लगने वाला है
तैयारी है उसके लिए भी लगेगा, और प्लस जो भी है डॉक्यूमेंट्स और टैक्सेस, इसके लिए कंपनी 60% का ये पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। अभी हम लोग को जो 40% मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो इस जगह से, जैसे हम हमारे जितने भी फ्रंट लाइन को डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो इमीडिएट 10% उसका जो भी अमाउंट है, जो भी उसने टैक्स दिया है, उसका 10% तुरंत हमको वहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। हमने अगर किसी को ज्वाइन करो, उसने किसी को ज्वाइन किया, तो हमारा सेकंड लेवल पे हमको 5% मिल जाता है, थर्ड लेवल पे हमको 2% मिलता है। टोटल ये कितना हुआ, 10, 5, 2, 17%। और ये 23% जो है वो टोटल फोर्थ लेवल ऑनवर्ड्स नीचे डाउन पूरा डेप्थ में बांटा गया है, ठीक है ना। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1% अगर हम लोग पर लेवल पकड़ते हैं तो 23 लेवल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आज तक कोई भी कंपनी में, कोई भी कंसेप्ट में लोग 15-20 लेवल के ऊपर जाते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 23+3 26 लेवल का इनकम हमको दिया है, इसे पकड़ लेते हैं हम कैलकुलेशन। लेकिन ये कैलकुलेशन जो 23% का है, ये कंपनी ने अपने हिसाब से उसको रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम में आपको ये देखो 10, 5 आपने जितने भी, और सबसे खास बात क्या है, आप जितनी आपकी फ्रंट विड्थ करो बढ़ाओगे उतना आपका डेप्थ में बिजनेस आएगा, ठीक है ना। आप ये सोचो मत मेरे पास 3 लोग है, 4 लोग है, 10 लोग है, जितने भी आप लोगों को यहाँ पे ला सकते हो, लास्ट यहाँ पे आपको उसका 100%, 10%, सॉरी 10% उसका आपको मिल जाता है। लेकिन सबसे बात क्या है, वो 100% सेटिस्फाइड होता है। जो भी जिसको आप लाते हो वो 100% सेटिस्फाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए मदद किया, उसके फ्यूचर में आपको आप उसको क्या देने वाले हो, ये उसको आपने फ्यूचर दिखा दिया। एक एग्जाम्पल है, फ्यूचर आपने दिखा दिया उसको। हम लोग वापस बैक जाएंगे बैक ऑफिस में। अभी ये होगा अपना पार्टनर प्रोग्राम हुआ, पे आउट होगा, माई इन्वेस्टमेंट होगा। आप जो भी टूल चाहिए आपको मार्केटिंग के लिए, वो सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है, कंपनी के वीडियोज है, ठीक है ना। मैंने आज दिन भर पूरा डेनिस टैगलाइन का सारे वीडियोज देखे हैं, छोटे छोटे वीडियोज भी है। इतना बंदा मेहनत कर रहा है, अकेला बंदा है, क्योंकि मुझे क्या चीज इसमें अच्छी लगी है कि जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो खुद ही इस पे काम कर रहा है, खुद ही इसके ऊपर पेटेंट्स ला रहा है, खुद ही इस पे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है, और खुद ही हर चीज में, यानी जो पार्टनरशिप प्रोग्राम में जितना भी उसको रेफर पूछते हैं, ये करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनका रिप्लाई भी देता है। तो आज मैंने भी एक उनको क्वेश्चन किया था जो मुझे जरूरी लगा था, वो क्वेश्चन का मुझे आंसर भी वैसा प्रॉपर मिला, ठीक है ना। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा बढ़ा है, और वो कॉन्फिडेंस के मध्य आपको आज रात को भी चेक आपको गुड न्यूज भी मिल जाएगा, आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। ये सारा चीज तो मार्केटिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो सारा चीज आपको यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी के चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंट्स। अब ये मत पूछो यहाँ पे कंपनी का आरओसी है क्या, पैन कार्ड है क्या, कंपनी का एमसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है क्या। भाई आप इंटरनेशनल लेवल में काम कर रहे हो ना, आपने कभी फेसबुक का पूछा है क्या, आरओसी है क्या, फेसबुक का कभी पूछा है क्या। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आप जूम यूज कर रहे हो, आप गूगल पे यूज कर रहे हो, आप पेटीएम यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो। आपने कभी पूछा है कि फोन पे गूगल पे का आरओसी नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है। ये भरोसे वाली चीज है, आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सारा सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया है। ये अगर रशियन लैंग्वेज में है तो आपके पास सबसे बेस्ट है गूगल ट्रांसलेटर है। और आज की दुनिया में हम लोग ऐसी जगह पे हम लोग है, ये दुनिया में है जहाँ पे झूठ बोलना मुमकिन ही नहीं है। अगर सामने वाले ने कुछ बोला तो आपके पास फर्स्ट क्लास आपके हाथ में एक मोबाइल है, गूगल करो उसको, जो सामने वाला बोल रहा है तो गूगल करो और फिर उसको समझ लो, ठीक है। तो पहले हम लोग बोलते थे कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा वैसा। अभी कुछ नहीं है, अभी जो भी है सामने सामने है, आपके सामने इंटरनेट है। इंटरनेट पे हो, जो आदमी जिंदा है वो इंटरनेट पे है, ठीक है। तो सारा चीज आपको यहाँ पे इंटरनेट पे प्रूव मिलता है। उसके बाद लॉग आउट के लिए एग्जिट है। तो ये सारा बैक ऑफिस का हमने यहाँ पे देख लिया। अभी एक आपको एक धमाका दिखाऊंगा, जो भी ऑलरेडी धमाका, मतलब मेरे लिए भी धमाका है और आपके लिए भी कुछ काफी अच्छी चीज है। अभी देखो मैंने यहाँ पे जो भी मैंने फंडा यूज किया, जो भी मेरा अर्निंग होता है वो अर्निंग से मैं क्या करता हूँ, कंपनी का ही फंडा यूज करता हूँ। 60% जो अर्निंग है वो मेरा मैं ऑलरेडी विड्रॉ करता हूँ, और 40% जो भी अर्निंग मेरा आता है वो हर महीने में मैं अपना इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट चालू है। अभी मैं इसी अकाउंट से आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। इसी अकाउंट से मैं एक मेरा न्यू पैकेज परचेस कर रहा हूँ। तो आप सब ऑलरेडी यहाँ पे हो, तो आप ये न्यू पैकेज कैसा परचेस करना है, जो अपने बैलेंस से कैसा परचेस करना है। मुझे सबसे बात अच्छी क्या लग रही है यहाँ पे कि मैंने जो अर्निंग किया वो मुझे कुछ तो भी एक फल मिल रहा है, और इतना बड़ा फल मिल रहा है। तो आपको एक लास्ट में आपको बताऊंगा कितना बड़ा फल है कि यहाँ पे आप करोड़ों की संपत्ति कैसा बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं हम लोग बाय शेयर में, सॉरी माई इन्वेस्टमेंट में जाते हैं।
ओके सॉरी, बाय शेयर में यहाँ जाते हैं हम लोग, मुझे भी शेयर बाय करना है। मोहित जी मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हेलो। हाँ ठीक है सर, करिए ऑन ठीक है प्लीज। चलो ओके। अभी मैं मेरा जो भी है इंस्ट्रूमेंट से बाय कर रहा हूँ, जो मैंने अभी पैकेज सिलेक्ट किया है वो ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 30 से 40 हजार रुपया इसका अर्निंग अर्निंग हर महीने में आता है, ठीक है। तो 30-40 हजार अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो मेरे बैंक में 30-40 हजार ही रहेगा, ठीक है। अगले महीने विड्रॉ करता हूँ वापस 30-40 हजार रहेगा, यानी 3 महीने में अगर विड्रॉ करता हूँ लाख भर रुपए मेरे बैंक में विड्रॉ होता है। लेकिन ये लाख भर रुपए से आप करोड़ रुपए कैसा बना सकते हो, इसका एक फंडा आपको बताऊंगा मैं। ये सबसे अच्छी चीज यहाँ कंपनी की पास है, ये कंपनी ने हमको दी है एक आम आदमी को, ठीक है ना, एक आम आदमी को एक अच्छा एसेट ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कभी तक अभी तक नहीं मिली थी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो ये पैकेज है 18 लाख 18,43,387 शेयर्स का, जिसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है $140 है, यानी उसका अगर हम देखा जाएगा कि इंटू 10 करते हैं तो $1,400 का, यानी $1,400 का उसका पैकेज होता है। अगर यही हम लोग अगर वन टाइम लेते हैं तो हमको 30% $30 डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे खास बात क्या, अभी कोरोना काल है, बहुत से लोग तंगी है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमको वन टाइम लेना है, बड़े शेयर लेना है, लेकिन हमारे पास वन टाइम जो पैसा है तो अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे आगे चल खर्चे पाने के लिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे आपके पास एकदम शांत माइंड से आप इसको आपके जो भी पैकेज है इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट को आप परचेस सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी जो पैसा है वो आपके खर्चे के लिए आप यूज कर लीजिए। जैसा भी मैंने बोला 60% का पैसा मैं मेरे खर्चे के लिए यूज कर रहा हूँ और 40% पैसा मेरे एसेट के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया पैकेज को, इंस्ट्रूमेंट को $140 का। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट। अभी सिलेक्ट पेमेंट मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस आ चुका है, मुझे यहाँ पे बैलेंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा कि जो मेरे शेयर्स अभी है 57248 शेयर्स है, ठीक है। और अर्निंग मेरा टोटल यहाँ पे इतना है और बैलेंस इतना है, 12,001 है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस को सिलेक्ट किया मैंने, प्रोसीड कर लिया इसको। तो जैसा प्रोसीड को मैं क्लिक करता हूँ, सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, ये विंडो देखो ओपन हुआ है, इंस्टॉलमेंट का विंडो हो चुका है, यानी मैं अभी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हूँ तो इससे मेरा विंडो इंस्टॉलमेंट के लिए भी ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे जैसा बताया 19/7 ये मेरा डेट है, आज की डेट में मुझे ये परचेस करना है। अगर मुझे लेना है तो प्रोसीड करना है, कैंसिल करना है तो ये करना है। तो मुझे क्या करना है, ऑलरेडी प्रोसीड करना है। ऑलरेडी 12,000 मेरे पास बैलेंस है, उसमें से 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ आप सबके सहमति से और आपके सबके सामने, आप इसको साक्ष्य है सभी यहाँ पे, जैसे इसको प्रोसीड कर दिया मैंने। वेरी गुड, देख लीजिए सर, पोर्टफोलियो यहाँ पे बनता है मेरा 19,635, ये मेरा पोर्टफोलियो। तो एक सेकंड में मैंने 18 लाख रुपए अर्न कर लिया, $18 अर्न कर लिया सिर्फ बटन दबाने से। ये आपको दिख रहा है, अभी अभी टोटल आपको एक फिगर दिख रहा है, जैसे मैं बताया एंड में आपको दिखाऊंगा मैं क्या है। अभी 2 महीने में मैंने क्या अर्न किया है इस मीटर से, मेरा अर्निंग टोटल हो चुका है 56,839 रुपए, यानी करीबन 57-58 हजार रुपए मेरा अर्निंग हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे पास जो पोस्ट डेट चेक है वो है 19,35 का। अगर इसको कैलकुलेशन इंटू $75 करते हैं तो करीबन 14.5 करोड़ रुपया, 14.5 करोड़ रुपए का मेरा पोस्ट डेटेड चेक ऑलरेडी मैंने बना लिया है, ठीक है ना। अगर ये अर्निंग भी अगर कल चल के बंद हो जाता है तो 14.5 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। तो मेरा जैसे हम सबका टारगेट है कम से कम आपके पास 50 से 60 लाख या 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ आपके पास पोर्टफोलियो होना जरूरी है, ठीक है। और अभी देखो 12,000 में से ऑलरेडी 10,000 रुपए माइनस हो चुका है और 2,000 रुपए यहाँ पे बैलेंस है। तो दोस्तों बोलने का मतलब क्या है कि इसमें बहुत अच्छी चीज है आपको कि अर्निंग इमीडिएट आपको इंस्टेंट मिल रहा है और आपके इमीडिएट अर्निंग से आप विड्रॉ करके भी ले रहे हो और आपका एसेट भी ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा नेक्स्ट जो पेमेंट है कब आएगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मेरा 19th of August,
19 ऑफ अगस्त में मेरा ये इंस्टॉलमेंट आएगा। अगर इसको मुझे पेमेंट आज भी करना है तो मैं पेमेंट को क्लिक करता हूँ, मेरे पास अगर 10,000 रुपए बैलेंस है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वापस मैं भर सकता हूँ इसमें एडवांस। ठीक है ना। तो जो काम करता है वो हर 10 दिन में भर सकता है, रोज भी भर सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये भरने के लिए 10 महीना लगने वाला नहीं है। अगर आपके पास उतना बैलेंस आता है तो आप उसको तुरंत भर सकते हो, शांत बैठ जाओ। 19 लाख का आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे बन गया है। 19 लाख मल्टीप्लाइड बाय $1 पकड़ ले तो 19 लाख डॉलर होता है। उसका अगर आइंडर में कैलकुलेट करते तो 14.5 करोड़ का आपका यहाँ पे एसेट बनता है। दोस्तों अगर 14.5 करोड़ का एसेट बन गया, अगर समझो 19 लाख पे अगर मुझे सिर्फ 1 रुपए भी अगर डिविडेंड मिलता है, एग्जाम्पल 1 रुपए डिविडेंड मिलता है, तो मेरा साल का अर्निंग 19 लाख रुपए होता है। अगर कंपनी इसमें अगर मुझे स्प्लिट करती है, हर 4 महीने में, हर क्वार्टरली देती है, तो समझो 20 लाख राउंड फिगर कर लगे तो 5-5 लाख रुपए मुझे हर 3 महीने में इसका मिल जाता है डिविडेंड। जो कि कितने भी आप काम करें नेटवर्क में, अगर काम रुक गया तभी इनकम चालू है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसलिए बोलता हूँ ना, नेटवर्किंग का थिंकिंग बंद कर दो। ठीक है, सोचना बंद कर दो, ये नेटवर्किंग नहीं है। अगर नेटवर्किंग होता तो यहाँ पे आपको बाइनरी फाइनरी बहुत कुछ होता, यहाँ पे इतना ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होता। सबसे खास बात, कंपनी का जो ओनर है वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता था। वो भी आपको दिखाऊंगा एंड में। मैं आपको ये सारा चीज आपने देख लिया तो मेरे तरफ से ऑलरेडी बैक ऑफिस का ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा है, आपके सबके मतलब गवाही से ऑलरेडी मैंने, आपके सबके आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग से मैंने 19 लाख शेयर यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। टोटल मेरे पास अभी 38 लाख शेयर हो चुके हैं। एक अकाउंट में मेरा ऑलरेडी 19 लाख शेयर है, अभी 19 लाख शेयर है, 38 लाख यहाँ पे शेयर हो चुके हैं। तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ। आशा है आपको सबको पसंद आया होगा ये बैक ऑफिस ट्रेनिंग। ऐसे हम हफ्ते में बैक ऑफिस ट्रेनिंग कंटिन्यू करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, अभी लोग नए नए हैं, कम लोग हैं तो सीखना चालू कर देंगे। आगे चल के अगर आपका टीम 1000 लोग का बन जाएगा तो सारा चीज आपको अपलाइन को ही करना पड़ेगा। तो ये एमएलएम नहीं है कि आपके अपलाइन सारा चीज करे। मेरे जो स्पॉन्सर है खलील शेख भाई, उनको मैंने जिस दिन मेरे को उन्होंने ज्वाइन किया 19/5 को, उसके बाद मेरे 1 या 2 बार ही फोन हुआ रहेगा। मैं कभी उनको डिस्टर्ब कभी नहीं किया, क्योंकि मैं ये सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है मेरा पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए। तो जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है उसको मैं सैल्यूट करके इसको, ये बिजनेस को मेरा अपना बिजनेस समझता हूँ मैं। और अपना बिजनेस समझ के जो भी है, नुकसान है फायदा है, वो मेरा है। अगर मैं सीखूंगा तो मेरा फायदा है, अगर नहीं सीखूंगा तो मेरा नुकसान है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ चीज में आपको देखना, ये अपलाइन का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। अपलाइन ने आपको क्या कर दिया, सिर्फ चाबी दे दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया, अभी आपको आगे भागना है। ठीक है, आप नहीं भागोगे तो आपका अपलाइन तो भागना है। क्योंकि क्या होता है, देखो डाउनलाइन हमारे पास, डाउनलाइन के लिए अपलाइन एक ही होता है, लेकिन एक अपलाइन के लिए डाउनलाइन 1000 होता है। ठीक है, तो अपलाइन को सैल्यूट करो, उसने अपॉर्चुनिटी दिया, और आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के अपने फ्यूचर के लिए आप उसको ग्रो करना शुरू करो। बहुत से लोगों ने देखा है कि क्या है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपना 3-4 लेवल में आईडी लगा और उसके नीचे काम शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि अपलाइन को एक परसेंट मिल जाएगा। ये मत सोचो, एक यहाँ पे इनकम 1% एक बार ही मिलता है। जिसने आपको दिखाया उसको एक बार ही इनकम मिलता है, लेकिन उसको सैल्यूट तक, उसको वो गुरु दक्षिणा है उसके लिए। अगर आप उसको गुरु दक्षिणा देने के लिए नहीं बोल रहे, नहीं अगर सोच रहे हो, तो आगे चल के आप वो उनसे कुछ सीख भी नहीं पाओगे ना। कि आपके मन में वो, अगर जो भी यहाँ पे एक आईडी है, वो आईडी पे आपने काम करना शुरू करो। ये जो भी आईडी है, ये इसी आईडी से, इसी अकाउंट से मैंने मेरे फ्रंट लाइन बनाया है, ना कि मेरे सेकंड आईडी से मैंने एक भी किसी को स्पॉन्सर नहीं किया। सेकंड आईडी लेने का रीजन क्या था कि मेरे फैमिली का एक पोर्टफोलियो उसको अलग से उसको बनाना था। लेकिन जो भी बिजनेस मैंने किया है, आप देखोगे यहाँ पे 20 लोगों को मैंने पर्सनल यहाँ पे स्पॉन्सर किया है। मैंने सेकंड आईडी से किसी को भी, एक बंदे को भी स्पॉन्सर नहीं किया है। कि मैं समझता हूँ जो मैंने, मेरे अपलाइन को भी उसका इनकम मिलना चाहिए। तो आप भी सोचो, आपके अपलाइन को अगर आप सोचते हो कि इनकम कल डिविडेंड पे आएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये डिविडेंड मेरे को चाहिए। डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन आपको सारा चीज सीखने के लिए यहाँ पे आपका अपलाइन होना बहुत जरूरी है, आपका स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू खलील भाई, आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, और सबसे खास बात, ये प्लेटफॉर्म भी दिया मुझे आपके सबके रूबरू करने के लिए। तो लास्ट और नॉट लीस्ट, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये नेटवर्क का यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने अब तो सबको भेज दिया है। जो भी डेनिस सर से मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी, मैंने उनके सारे वीडियो देखने के बाद उनसे चैट किया था। चैट मुझे 3-3.5 मिनट में मुझे रिप्लाई आया। उसके बाद में मैंने चैट किया, वो चैट किया था आपको बताऊंगा मैं। 2 मिनट का अगर वक्त देंगे तो आप सुनोगे। उसमें मैंने बताया कि मुझे ISN नंबर चाहिए। जो ISN नंबर क्या होता है, जो भी कंपनी को होल्डिंग में रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको ISN नंबर दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि
इंश्योरेंस अगर बेचना है तो आपको IRDA नंबर चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री करना है तो आपके पास सेबी होना चाहिए, सेबी अप्रूव होना चाहिए। वैसा ISIN जो होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसा अपना पैन कार्ड होता है ना, अपना पैन कार्ड क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। वैसा ही वो कंपनी के लिए स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक जो कंपनी स्टॉक्स होल्डिंग करती है उनके लिए ISIN नंबर होता है। तो अभी उन्होंने जो रिप्लाई मुझे दिया वो मुझे सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि हमारी कंपनी अभी प्री IPO में भी नहीं है, अभी हम प्री IPO में भी नहीं है। हम लोग अभी क्या है, हम लोग अभी अलॉट शेयर्स कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो 75 पेटेंट्स है, ठीक है ना, और 75 पेटेंट्स जब जैसे ही हमारे पेटेंट जैसे से अप्रूव होते जाएंगे, वो सारे पेटेंट्स का हो गया हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मतलब एसेट होता है कंपनी का, वो एक डिपॉजिटरी अमाउंट होता है। वो मतलब जितना भी आपने पास कैश अमाउंट आया उससे भी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसकी जैसा जैसा अभी आपने कोई एग्जाम दिया होगा या 12th पास होकर आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आपका 12 मार्कशीट नहीं है, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका वैल्यू नहीं है, कि वो कोई मान नहीं पाएगा कि आप इतना पढ़े हो, इतना सीखे हो। वैसे ही ISIN नंबर अगर आपके पास है, या सॉरी ISIN बोलता है, जिस आपके पास पेटेंट्स है, वो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपको वो डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, वहां पे आपको रखना पड़ता है, उसके अगेंस्ट आपको ISIN नंबर मिलता है। ISIN नंबर जैसे मैं बताऊंगा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी मिल जाएगा अपने को, अगर नास्डैक में भी है, NYSE में भी है, स्विट्जरलैंड, जहां पे भी अगर हमको उसका ISIN नंबर मिलता है, उस स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग वहां पे लिस्टेड हो जाएंगे। वो लिस्टेड होने के बाद हम लोग को प्रॉपर शेयर इश्यू करने के लिए अथॉरिटी मिल जाती है। अभी जो हम लोग शेयर ले रहे हैं वो आपको मिल रहा है सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन कल चल के जब ISIN नंबर हमारा इक्विटी कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास एक सर्टिफिकेट अलग आएगा, जो सर्टिफिकेट में आपको क्या होगा, आपके सीरियल वाइज आपको शेयर्स मिलेगा। एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप जैसा मैंने अगर समझो 100 शेयर्स लिए, तो मैंने कंपनी का फर्स्ट समझो मैं आईडी हूँ या कंपनी का फर्स्ट इन्वेस्टर हूँ, तो 1 से लेकर 100 तक मेरे शेयर्स हो गए। कल मोहित जी ने मेरे बाद इमीडिएट मेरे बाद इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 200 शेयर्स लिए, तो मोहित जी को कौन सा नंबर दिया जाएगा, 101 से लेकर 300 तक, ये मोहित जी के नाम से शेयर अलॉट हो गया है। उसके बाद विपुल जी है, विपुल जी ने समझो 500 शेयर लिया है, तो विपुल जी को क्या होगा, 301 से लेके 500 यानी 800 नंबर का इनको सीरियल दिया जाएगा। वैसे ही आपने जो 312-14 जो बिलियन है उसमें 10% जो है, वो 10% को एक सीरीज वाइज आपको सबको नंबर मिलेगा, और वो सारा सीरीज है आपके शेयर सर्टिफिकेट पे होता है, और वो शेयर सर्टिफिकेट का एक नंबर भी आपको मिलेगा। तो वो सारा चीज आपको मिलेगा। इसलिए बोलता है ये दुबई का जो प्रोग्राम है, दुबई का जो इवेंट है, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमको दिखाएगा। क्योंकि दुबई के प्रोग्राम में क्या होगा, दुबई के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपना सबसे महंगा सबसे बड़ा पैकेज कौन सा है, नियर अबाउट $65,000 का कुछ पैकेज है। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट देखते हैं तो 6,500 कुछ उसका मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 65,000 का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन 51 लाख रुपए होता है। 51 लाख रुपए अगर समझो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9 करोड़ शेयर मिलते हैं। अभी 51 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं तो हाथ के बाहर है। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन रहेगा, एक बड़ा कंपनी का मालिक रहेगा, वो 51 लाख रुपए वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के 9 करोड़ शेयर कर लेगा। तो सोचो वर्ल्ड में कितने ऐसे बड़े बड़े टाइकून से बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो प्रोजेक्ट को देखने के बाद वो वहां पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने सारे शेयर 39% शेयर भी कंप्लीट हो सकते हैं, या जो भी अपना जो 10% जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अभी यहाँ बचा है, जो बैलेंस अभी तक जो अपॉर्चुनिटी समझ नहीं पा रहा है, उसको वो 39% IPO आने के बाद शेयर लेना पड़ेगा। और डेनिस टैगलाइन सर ने यहाँ तक बताया मुझे, यहाँ तक बताया कि एक शेयर जब हम लिस्टेड करेंगे तो मिनिमम हमको $1 का लिस्टेड देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट पे आपको वो लिख के आएगा वहां पे। क्योंकि होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देना ही पड़ता है जब आपका ISIN नंबर आता है। तो उस सर्टिफिकेट पे आपको एक मिनिमम $USD का ये आपको गारंटी आके मतलब टाइप होकर आपको मिल जाता है, यानी इससे कम में आपको नहीं मिलेगा रिटर्न। अगर इसके बाद भी अगर प्रोजेक्ट बढ़ता है तो $1 से आगे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मैं तो $1 ही पकड़ रहा हूँ, $1 जिस दिन लिस्टेड हो जाएगा उसे $1 पकड़ लेते हैं तो आपका शेयर। आप सोचो आपके पास अगर लाखों शेयर्स रहेंगे तो आपके लाखों डॉलर यहाँ पे बनने वाले हैं। लाखों डॉलर के आपको हजारों डॉलर का मिनिमम आपको ये डिविडेंड मिलने वाला है। तो डिविडेंड मतलब क्या है, डिविडेंड आपको एक कैश इनकम है, कैश इनकम मतलब कैश डिविडेंड आपको मिलेगा। यहाँ पे कंपनी दोनों ऑप्शन ओपन करेंगे हमारे लिए, एक कैश डिविडेंड भी ओपन करेगी, एक स्टॉक डिविडेंड भी ओपन करेगी। स्टॉक डिविडेंड आपको मैं इसका ये दो कॉम्बिनेशन है, स्टॉक क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कैश डिविडेंड, ये हम लोग आगे चल के एजुकेशन पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो सबसे खास बात ये जो आज आपने बैक ऑफिस ट्रेनिंग लिया है, तो इसको आप हर रोज अपने बैक ऑफिस को ओपन करते रहेगा। सबसे अच्छी बात है आप जितना सीखोगे, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और दूसरी बात, हाँ जैसा कि बताया मैंने यहाँ पे
आज जितने भी लोग आए हैं सारे मतलब 100+ लोग आ रहे हैं अभी एवरीडे। मतलब हमारा जो ग्रुप है वो अच्छा काफी अच्छा एजुकेट होते जा रहा है। तो हम लोग टाइम टू टाइम आपको सारा चीज अपडेट देते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी आपका पोर्टफोलियो बड़ा दीजिए। आपके परिवार के लिए आपको बहुत सारा चीज करना है और आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आ चुका है। ठीक है, अभी एक लास्ट एक आपको चीज दिखाना जा रहा हूँ। ठीक है, अभी वो यहाँ पे ओपन दिख नहीं रहा है। तो मेल भी ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे एक मेल आ चुका है कि ऑलरेडी मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया। वो आपको अब दिख जाएगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड फ्यूचर। जल्दी, और फ्यूचर को आज देख लीजिए आप। जो हमारे पास एक ऑप्शन है, फ्यूचर को आज देख लीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास है। तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड गुड नाइट। थैंक यू। फंटेस्टिक फंटेस्टिक सर, बहुत अच्छे से आपने चीजों को परफॉर्म किया, नो डाउट। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू आनंद परदेसी सर। राइट, और होपफुली आज के सेशन को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। राइट, पूरे का पूरा लर्निंग से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था सारा का सारा। राइट, यही बेसिकली लर्निंग एटीट्यूड जिसके अंदर होता है ना, वो हर हर जगह कामयाब हो सकता है। राइट, मैं मोहित चौधरी, थोड़ा सा बस मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली इन्वेस्टर एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। ओके, ये बेसिकली है तो आनंद परदेसी जी का टॉपिक, लेकिन अभी मेरे माइंड में आया तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं ही बता देता हूँ इसको। ओके, तो बस आज ऐसी मैं किसी से बात कर रहा था, जब मैं उसको पूरा कन्विंस किया उसको। राइट, तो ये चीजें उधर से निकल के आई, माइंड में स्ट्राइक किया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, अर्ली इन्वेस्टर एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। राइट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर सबको समझ में आता है कि जहां पर बड़े बड़े पैसे वाले पैसे झोले भर भर के लेके आएंगे और बड़े बड़े शेयर पैकेज इधर से बाय करेंगे। ओके, और अब दूसरी बात है, इधर एक आता है अर्ली इन्वेस्टर, जिसमें कि आप और हम लोग हैं। राइट, तो हम लोगों को तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मींस जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर मींस वो तो पहले से ही अमीर है। राइट, तो वो तो और अमीर होने के लिए इस सिस्टम में, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना इन्वेस्ट करेंगे। राइट, लेकिन आपको और हम लोगों को जो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट, जिस जिस मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली है। मुझे अब से करीब 101 दिन पहले या 100 डेज पहले मुझे मिला था। राइट, जैसे कि आनंद सर बोलते हैं कि मैं अपने अपलाइन को बिल्कुल थैंक यू करता हूँ, सेम वे मैं भी अपने अपलाइन को बिल्कुल उसी तरीके से थैंक यू करता हूँ कि उसने एक सही समय पर एक सही चीज को मेरे साथ में शेयर किया। ओके, सो उसके लिए थैंक यू विपुल जी, थैंक यू यशवीर राठौर जी। और हाँ, अर्ली इन्वेस्टर मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेज 14 तक, राइट, स्टेज 14 तक आपका ये अर्ली इन्वेस्टर्स, राइट, आज जो हमारे साथ में आ रहे हैं वो अर्ली इन्वेस्टर्स चलेगा। राइट, और जैसे ही हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है रेडी होता है, उसमें भी नो डाउट, उसमें भी वही टाइम लगना है, 2023 तक उधर जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, सिविल कंस्ट्रक्शन टास्क है, तो इतना समय लगेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की फॉर्म में ही वो डेवलप होगा। ओके, अब जैसे कि आनंद सर बोलते हैं कि जब हमारा वो मॉडल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, जो एक्चुअल वर्किंग, एक्चुअल उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह, वो सारी की सारी चीजें वो देखने के बाद जब कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स आएंगे, तो नो डाउट ये जो बचे हुए जो शेयर्स होंगे, मतलब 10% शेयर जो है पब्लिक शेयर्स हैं, जो कि अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए ही रिजर्व हैं, ये ऐसा हम कह सकते हैं, अप टू 14 स्टेजेस। ओके, अब मैं बेनिफिट बताना चाहता हूँ अर्ली इन्वेस्टर्स का और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स का। ओके, कंपनी आज जो इन्वेस्टर्स उनके साथ में आ रहे हैं, जो कोओनर कंपनी के साथ में बन रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट होने वाला है वो मैं बताता हूं आपको। ओके, वो बेनिफिट ये है, लेट्स से कि 2023 के अंदर हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, वो एयर को प्यूरिफाई भी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है। राइट, उसके बाद में कंपनी अपने प्रोजेक्ट को सेल करना चालू करेगी। राइट, तो जब कंपनी सेल करेगी, ओके, जिसको बेसिकली लाइसेंसिंग, सेल ऑफ लाइसेंस बोलते हैं। राइट, इंडिविजुअल लाइसेंस मतलब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को उन्होंने डिलीवर किया। ओके, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी को जो प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी प्रॉफिट को शेयर करेगी अपने सिर्फ और सिर्फ अर्ली इन्वेस्टर के साथ में। राइट, ये बात थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, प्लीज इसको नोट डाउन करना।
माइंड में। ओके, जितने भी अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी प्रॉफिट शेयर को अपने सभी अर्ली इन्वेस्टर जो को ओनर्स हैं उनके साथ में शेयर करेगी कंपनी। ओके, फिर देन जब इसमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स आना चालू होंगे, जब हमारे 14 स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, राइट, उसके बाद में जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होंगे और जो आप लोग होंगे, हमें उस टाइम पे भी, राइट, उसके बाद में भी हमें उस टाइम पे भी कंपनी अपने प्रॉफिट शेयर हम लोगों को करती रहेगी, जो कि अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि आप और हम सब लोग। ओके, लेकिन जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होंगे उनको फाइनली जाके डिविडेंड ही मिलेगा। ओके, कंपनी जब तक इसका विटर शेयर जो है लिस्टेड नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज के, फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, राइट, तब तक कंपनी हमें हर एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, हर एक प्रोजेक्ट डिलीवर होने के माध्यम से हमें प्रॉफिट शेयर कंपनी हमेशा देती रहेगी अंटिल एंड अनलेस जब तक कि विटर शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं जाता। देन उसके बाद में फिर कॉर्पोरेट शेयर को भी डिविडेंड मिलेगा और आपको भी डिविडेंड मिलेगा। होपफुली समझ में आया होगा कि अर्ली इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर जो आएगा उसको सिर्फ डिविडेंड के लिए आएगा, उसको कंपनी सिर्फ अपने डिविडेंड के अंदर पार्टिसिपेट कराएगी, राइट। लेकिन अर्ली इन्वेस्टर्स को आपके साथ कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर भी कर रही है और फाइनली आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कराएगी। ओके, होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली इन्वेस्टर एंड द कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। ओके, और अर्ली इन्वेस्टर का एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो भी मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली कंपनी के लिए हम लोग जो है वो रोल मॉडल्स हैं। कंपनी को पहला प्रोजेक्ट डिलीवर कराने में आप और हम सब लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जाके पहले पायलट प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ उधर जाने वाला है, राइट, सो दैट पूरी दुनिया उस प्रोजेक्ट को देख सके और वहां से बड़े बड़े इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, राइट, जिसको हम लोग बिजनेस टाइकून्स बोलते हैं, वो उधर अट्रैक्ट होंगे। तो डेफिनेटली जो और जो बचे हुए शेयर्स है मींस 52%, रेस्ट ऑफ द 48 मतलब 38% शेयर्स हाथों हाथ ऐसे बिक जाएंगे। और जितना ज्यादा शेयर्स उस टाइम पे फिर ये कॉर्पोरेट में जब ये जाएगा तो जितना जल्दी शेयर्स बचेगा उतना जल्दी आपके शेयर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और यहीं पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आनंद सर ने डेफिनेटली वो जो 19 लाख शेयर्स हैं वो बेसिकली उनका 19 लाख डॉलर है, कम से कम इतना वैल्यू तो वो गारंटेड है ही, चाहे वो आज की डेट में, चाहे वो 1 साल बाद देख लो, 5 साल बाद देख लो, वट एवर, 5 साल बाद में तो डेफिनेटली उसका और प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो होपफुली आज के सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी समझ में आया होगा पूरा का पूरा सेशन, राइट। और अभी 10:15 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर सेशन को बाइंड अप करना चाहूंगा। ओके, बस मैं चैट में चेक कर लेता हूँ। दादा साहेब चोट जी हैं, प्लीज ये थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट का हो, अच्छा नहीं है सर, तो सर उसमें ना इंटरनेशनल पेमेंट आप ओपन करा लीजिए कस्टमर केयर को बात करके, तो वहां पर एक्सिस में भी हो जाएगा आपका। सुरेश सर हैं, सर इफ आई बाय ऑन इंस्टॉलमेंट, if the share get over then we have to say pay same amount till the last installment। yes sir, exactly, आपको सेम अमाउंट आपको कंटिन्यूअसली जब तक आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं जाती तब तक आपको पे करना पड़ेगा। ओके, राम भारती जी, माय अपलाइन मोस्ट सीनियर मोहित जी, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट लीडर, आपको बहुत बहुत सैल्यूट सर, आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट, क्योंकि आप इस सिस्टम के अंदर प्रॉपर वे में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और यहाँ पर आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, राइट, और जो सीख रहे हैं वही अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोयम जी हैं, सर बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन अवर बैकेज। सर डेफिनेटली बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी जो है वो यूएसडीटी के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आईडी टू आईडीओ ट्रांसफर नहीं होगा सर। आपका जो बैलेंस है या तो उसे आप विड्रॉ करोगे यूएसडीटी में, या फिर आप अपने इंस्टॉलमेंट पे करोगे, या फिर जो आपके नए पैकेजेस हैं उनको आप बाय करोगे। एंड वी बाबूराव जी, सर 210 डॉलर के शेयर का ओके 210 एक बाय इंस्टॉलमेंट, यस, जो 210 का जो है 210 का कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, आपको इंडिविजुअल लेना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको $40, $70, $140 एंड उसके ऊपर जो जाएंगे 200, यहाँ तक कि $210 का भी इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो इनको आप पिक कर सकते हैं, पर्टिकुलर $210 का कोई इंस्टॉलमेंट फैक्टर नहीं है अभी। ओके, सो होपफुली आपने एंजॉय किया। कोमल सारस्वत जी, प्लीज मुझे आप सर कॉल कर लीजिएगा। ओके, सेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हुआ है, 17 मिनट डिले है। ओके, सो थैंक यू very much and all the best. Take care. Bye bye.